Do you open your books or laptops and stare at the screen for 10 minutes? Then you started scrolling Instagram, being about productivity without being actually productive? Yep, you have been there, right? You felt it. Okay, in today's video, we are talking about why your brain just can't focus, and more importantly, how you can train it to actually stay on task without wanting to check your phone every 30 seconds. Let's understand why we can't focus, right? So, the first important thing is our brain is overstimulated, right? So, our brain is overstimulated for all the notifications, 6 tabs open, and WhatsApp text, Facebook messages, all the calls, and all the things that are going around, all the background musics, because our brain is not that much wired for this much input. हमारी ब्रेन्स ऑल दो इतने मल्टीटास्किंग के लिए कभी भी प्रिपेयर नहीं हुआ था, बना ही नहीं था इस चीज़ के लिए। तो जब हम एक जगह पे बिना बैठे, बिना पढ़ाई करे, ये सब चीज़ ना करके भी हमको डोपामिन मिलता है ना, तो तब क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारा ब्रेन ये सारी चीज़ों को लेके उतना ज़्यादा बोरिंग फ़ील करता है कि हम ये सारी चीज़ों से डोपामिन गेट ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमको नॉर्मल चीज़ों में जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, रील्स, ये सब चीज़ों से डोपामिन इनफ मिल जा रहा है। तो क्या हो रहा है, हमको वो प्लेज़ेंट ऑलरेडी फ़ील हो रहा है, राइट? जब हमको ऑलरेडी डोपामिन मिल चुका है, तो फिर सिंपल टास्क जैसे कि बुक पढ़ना या फिर एक जगह पे बैठना या फिर कोई भी चीज़ जिसमें फोकस लग रहा है, वो चीज़ों फिर करने के लिए फिर क्या लगता है, बोरिंग लगता है। तो हमारा ब्रेन उस सब चीज़ों के लिए रिवॉर्डेड फील नहीं करता, अनरिवॉर्डेड फील करता है। तो हमारा फोकस क्या होता है, फिर डिवाइड होने लगता है और वैसे फिर बिल्ड नहीं हो पाता है। यू आर मल्टीटास्किंग बैडली। Okay, let me tell you. You think that you are multitasking, like watching a lecture, scrolling your reels, replying to WhatsApp or Instagram text, but your brain is switching. Yes, when your brain switched from one task to another, it started ruining your memory building. It started ruining your retention of different memories, like you have studied before some time. That is very exhausting for your brain when you are switching from one task to another task very vigorously, very speedily. That is very exhausting for your brain. It started deteriorating or ruining your own memory, like what, like any skill, anything you have studied, or anything whatever was important or unimportant for you. So it is always important to stay tuned on one task, then complete it properly, then go to another task. Third important one is emotional fatigue or emotional overload. Lack of focus is also your mind's SOS signal, saying I am tired, I am anxious, or even I am avoiding something uncomfortable. Focus problems are often emotional, not just attention based. So, you need to understand when you are overloaded with emotions, when your emotions are too much in your brain or in your heart, then you need to take help of any friends or family or anyone you want to talk about, so you can release your emotions. Then only you can again focus on your present task and you can regain your focus. Let's understand how to fix this. Let's understand how we can regain our focus, how we can restart our brain. So there are three simple way by which you can regain your focus. The first one is 5 minute rule. Yes, तो इसमें आपको क्या करना है, 5 मिनट के लिए बस अपने ब्रेन को कॉन्सेंट्रेट करवाना है पढ़ने के लिए। यस, वंस यू हैव स्टार्टेड टेकिंग द इनिशियल्स, मोमेंटम आ जाता है। उससे क्या होता है, क्या फिर पढ़ने लग, सोचने की जरूरत ही नहीं होती है, सिर्फ शुरुआत करना ही इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमको प्रोकास्टिनेट हम कर करके फिर उसको डिले कर देते। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी ब्रेन स्कैटर्ड लगे, व्हेन एवर योर माइंड इज स्कैटर्ड, स्टार्ट ग्राउंडिंग टेक्निक। यस, उसमें क्या है, 5, 4, 3, 2 and 1. Yes. 5 things you can see, 4 you can touch, 3 you can hear, 2 you can smell, 1 you can taste. It brings your mind to now, that the overwhelming future or the guilty past. मतलब क्या है, इससे आप रियलिटी में आ जाओगे वापस। तो क्या होगा, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा फिर कोई भी टास्क में फोकस कर पाना वापस से। The last but my most favorite one, make focus bubble. Yes, you heard it right. तो इसमें क्या करना है, create a study zone
व्हेन यू हैव नो डिस्ट्रैक्शंस। आपको एक स्टडी जोन बनाना है, एक स्टडी टेबल सेट करो या फिर एक स्टडी रूम बनाओ, एक स्टडी एनवायरनमेंट बनाओ जहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शंस ना मिले। यस, जैसे पुट सम कैंडल, प्ले सम लाइक सॉफ्ट म्यूजिक जो कि मेनली आपके लैंग्वेज का ना हो। यस, उसके बाद आप क्या कर सकते हो वहाँ पे, यूज एप्स लाइक फॉरेस्ट जिसमें आपको डिस्ट्रैक्शंस ना हो। Make it feel real. Yes, make it feel real, soft, sweet, and intentional, where you can regain your focus whenever you want. That is the strength. Yes, जब आप अपने लिए एक एनवायरनमेंट सेट करते हो जहाँ पे आप हर एक चीज़ अपने हिसाब से रखते हो, अपने हिसाब से करते हो, आपको पता है आप किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होते हो, उस चीज़ को हटा दो। आप देखो कि आपको किस चीज़ों से ज़्यादा प्रेजेंट फील होता है, आपका ब्रेन फॉगी नहीं फील करता है, अच्छा लगता है, सूथिंग लगता है, उस चीज़ों को वहाँ पे रखो और अच्छे से अपने प्लेस को डिज़ाइन करो जहाँ पे आप कंफर्टेबली सेफ फील करके सॉफ्टली अपने काम में इंटेंशनली फोकस कर पाओ। होप you like it. In short, we can say to focus in that particular time or to focus for a particular time, what you need is to understand the psychology of your brain. तो अगर आपको फोकस गेन करना है तो आपको सेल्फ कंट्रोल से ज़्यादा ब्रेन की साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। यस, अगर आप ब्रेन की साइकोलॉजी अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस टाइम क्या नहीं करना है जिससे आपकी ब्रेन डिस्ट्रैक्टेड फील ना करे। और ये सुनना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। यू आर नॉट ब्रोकन, योर एनवायरमेंट एंड माइंड जस्ट नीड ए रीसेट। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो और कमेंट में ये ड्रॉप करो इफ़ यू विल ट्राई द ग्राउंडिंग टेक्निक टुडे। और हाँ, सब्सक्राइब तो कर लो फॉर श्योर। और ऐसे सेल्फ हेल्प और मेंटल हेल्थ वीडियोस के लिए मैं हूँ दीपशिखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे काम, स्टे काइंड टू योरसेल्फ एंड स्टे फोकस्ड एंड लेट मी नो हाउ इट वाज फॉर यू। आपको ये हेल्पफुल लगा या फिर आपको ये कैसा लगा, आपके ऊपर कैसे वर्क किया। अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत आई तो कमेंट डाउन बिलो सो आई कैन हेल्प यू फर्दर देयर।